हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे। I can start the pranam, right? ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानजाशलाख्या चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। नमा ओम विष्णुपदाय श्री कृष्णप्रेष्ठ भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषेश शून्यवादी पश्चाये देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। Beautiful. Thank you, Mehak. Hare Krishna, everyone. So, seems like we have 45 minutes to cover all the verses. That is the exact duration in which Krishna spoke the entire Bhagavad Gita. And we have 45 minutes to cover just a few verses. Hopefully, we will succeed. So, till now, we have covered till 2.30. From 2.1 to 2.10, it was all about Arjun being indecisive. From 2.11 to 2.30, we learned about the knowledge of soul. I'm sure you all have done your homework very nicely, all the characteristics of the soul. Then we learned about the elements and how to show real compassion to the soul and how to execute our duties with tolerance. So, in short, from 2.11 to 2.30, Krishna was refuting the first reason given by Arjun, which was bodily compassion. Now we'll come to 2.31. From 2.31 to 2.38, Bhagwan will explain the third reason that was given by, the second reason that was given by Arjun, which was loss and no enjoyment. That if I go out and if I fight, तो क्या मजा आएगा? There will be no enjoyment. So now Krishna will refute the second reason from 2.31 to 2.38. We will follow the same pattern, reading translations, and then I will try my best to explain as much as possible. And maybe today Shashti can start from 2.31, reading 5 verses. Considering your specific duty as a Kshatriya, you should know that there is no better engagement for you than fighting on religious principles, and so there is no need for hesitation. Yeah. So we can also name this verse as a win-win situation. भगवान is saying if अर्जुन जाके लड़ते हैं तब भी जीत होगी and even if वो लड़के हार जाते हैं तब भी अर्जुन की जीत होगी. The first reason, if Arjun goes out and fights, ठीक है, and fight करने के बाद for example वो नहीं जीतते हैं, तब भी सही हुआ because at least उन्होंने अपना धर्म follow करा. And second reason, if वो लड़ते लड़ते by chance मर जाते हैं तब भी win situation because स्वर्ग की प्राप्ति होगी. So in short, Krishna is saying this is a win-win situation. Even if you fight and win, then great. And even if you fight and lose, then also great. So this is win-win situation. 2.32. O Parth, having happy are the Kshatriyas to whom such fighting opportunities come onslaught, opening for them the doors of the heavenly planets. Yeah, this is the same. So to get spiritual knowledge, one needs steadiness. Spiritual knowledge पाने के लिए भी हमें steadiness की जरूरत है.
Yeah, material results produced from actions performed with material desires is ignorance. जब भी हम किसी रिजल्ट के लिए काम करते हैं, that means हम अभी भी ignorance में हैं. So that is explained in 2.32. Yeah. For Arjun, Krishna is saying that this fighting should be like a yagya. Yagya की तरह लड़ो. You should not be expecting anything in result. And same win-win situation को और depth में भगवान यहाँ पे बता रहे हैं. That if he wins, he will rule. And if he loses, then he will go to the heavenly planets. Why will he go to the heavenly planets? Because he died performing his dharma. Yeah. 2.33. If, however, you do not perform your religious duty of fighting, then you will certainly incur sins for neglecting your duties and thus lose your reputation as a fighter. So जैसे अर्जुन ने हमें थर्ड रीजन दिया था कि मैं लड़ूंगा नहीं. क्यों नहीं लड़ूंगा? बिकॉज देयर इज अ फियर ऑफ सिन विद इन मी. अगर मैं लड़ता हूँ तो मुझे पाप लगेगा. तो कृष्णा यहाँ पे वेरी स्मार्टली ही इज रिफ्यूटिंग द थर्ड रीजन गिवन बाय अर्जुन. वो बिल्कुल सिचुएशन को पलट रहे हैं. ही इज सेइंग दैट इफ यू डोंट परफॉर्म योर ड्यूटी देन पाप पड़ेगा. दैट विल बी सिंफुल. सो परफॉर्म योर ड्यूटी. एंड एज अ क्षत्रिय, your duty is to fight right now. But if you don't perform your duty, then that will become sinful. 2.34. People will always speak of your infamy, and for a respectable person, dishonor is worse than death. So beach mein Krishna is just jumping from reasons. Now again in 2.34, he is refuting the second reason, which is loss of enjoyment. He is saying that if Arjun does not fight, he will be dishonored. And pain and disgraced life will be more painful than the death of a warrior like Arjun. Being a Kshatriya, अगर तुम्हें लोग respect नहीं दे रहे, there is nothing more worse than this. In short, Bhagwan is saying, infamy तुम सह ही नहीं पाओगे. Because as a Kshatriya, you will not be able to take when people start dishonoring you. So fight. 2.35, 36, 37, you can read together. The great generals who have highly esteemed your name and fame will think that you have left the battlefield out of fear only, and thus they will consider you insignificant. Your enemies will describe you in many unkind words and scorn your ability. What could be more painful for you? O son of Kunti, either you will be killed on the battlefield and attain heavenly planets, or you will conquer and enjoy the earthly kingdom. Therefore, get up with determination and fight. So in all these three verses, 35, 36, 37, Krishna is trying to provoke Arjun. He is trying to say the same thing. कि अच्छा ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेटिकली अर्जुन ने डिसाइड करा मैं नहीं लड़ूंगा, और फिर आते जाते लोग तुम्हें बोलते हैं ये अर्जुन है, ये तो क्षत्रिय था, डर के भाग गया. सो अर्जुन नहीं सह पाएंगे, तभी उनका एरो निकलेगा एंड ही विल स्टार्ट शूटिंग एरोज because he won't be able to take insult. So Krishna is trying to show that nahi ho paega, and to explain this he's trying to provoke Arjun that fight, because unkind words and scorning is something that you will not be able to take. Yeah. Okay. From 38, someone else can read. Sanskriti, you can read 2.38. Do thou fight for the sake of fighting without considering happiness or distress, loss or gain, victory or defeat, and by so doing you shall never incur sin. Okay. So in short, from 31 to 37, अभी तक भगवान ने हमें fruitive karma explain करके दे दिया. Fruitive karma, also known as Sakam Karma Yoga, wherein we expect something in return. इसलिए भगवान बार बार बोल रहे हैं कि अच्छा अगर तुम लड़ोगे तो ये मिलेगा, नहीं लड़ोगे तो ये मिलेगा. So that is Sakam Karma Yoga, when we expect something in return. तो जैसे हमने चैप्टर 1 में समझा था, भगवान हर 5 रीजन को रिफ्यूट करने के लिए कोई ना कोई योगा देंगे. बॉडीली कंपैशन को रिफ्यूट करने के लिए उन्होंने पूरा सांख्या योग हमें एक्सप्लेन करा था.
कि ये सोल होता है, ये मैटर होता है, डोंट बी अटैच टू द बॉडी, वी आर नॉट द बॉडी, वी आर द सोल। जो सेकंड रीजन था लॉस एंड लॉस, मैं लड़ूंगा मुझे मजा नहीं आएगा, देयर विल बी लॉस ऑफ एंजॉयमेंट। तो भगवान सेकंड रीजन को रिफ्यूट करने के लिए सकाम कर्म योग दे रहे। एंड नाउ इवेंचुअली वी विल मूव ऑन टू द थर्ड रीजन विच वाज फियर ऑफ सिंफुल रिएक्शन। एंड यहाँ पे भगवान थर्ड योगा इंट्रोड्यूस करेंगे विच इज नोन एज बुद्धि योग। आगे जाके विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ बुद्धि योग। नाउ Sanskriti just read 2.38. In 2.38, Bhagwan is refuting the third reason, which is fear of sinful reaction. यहाँ पे अर्जुन क्वेश्चन करते हैं कि क्या सिन इनकर होता है ब्राह्मण को किल करने का, एंड कृष्णा इज टेलिंग अर्जुन दैट ही विल नॉट इनकर सिन इफ ही कीप्स लिबरेशन इन हिज माइंड। अगर वो मुक्ति को ध्यान में रख के और लिबरेशन को ध्यान में रख के लड़ते हैं, then उसका कोई sinful reaction उन्हें नहीं मिलेगा। Yeah, he's saying don't forget to attain kingdom or enviousness, but only fight for liberation. And अगर हम 2.38 का वर्स पढ़ते हैं तो मुकुंद वर्ड यूज करा गया है, एंड मुकुंदा इज वन जो मुक्त कर देता है हमें एक्शन से। माता जी, you wanna add something? Yeah. So Hare Krishna. This is just for the new, all the new kids who have joined. So basically, I think Varna and Ashram is not being discussed with them, so they might get confused about, भगवान बताने की क्या कोशिश कर रहे हैं। So हम इतना समझ रहे हैं कि भगवान यहाँ पे ये जो महाभारत का युद्ध है ना, ये लड़ाई को लेके सिखाना हमें ये चाहते हैं कि why are we here and what is our supreme role एंड सुप्रीम डेस्टिनेशन को कैसे हम अपनी प्राप्त होंगे, उसको बताने के लिए ये पूरा युद्ध रचा गया। तो जब अर्जुन परेशान हुए तो अभी जो पहले नियति ने लास्ट क्लास में बताया था 2.1 से लेकर 2.30 तक बेसिकली भगवान ने बताया कि हाउ टू रियलाइज दैट सुप्रीम ट्रूथ बाय अंडरस्टैंडिंग कि वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर अ सोल, है ना। उसको उस पोर्शन के वर्सेस को कहा जाता है सांख्य योग या ज्ञान योग। ज्ञान से बताने की कोशिश की, पर हर किसी को ज्ञान समझ में नहीं आता, है ना। हम में से भी यहाँ बैठे कोई सोच सकते हैं मुझे नहीं पता, मैं तो अपनी बॉडी को ही जानता हूँ, मुझे तो पता ही नहीं है सोल है कि नहीं है, मैंने देखा ही नहीं है, विच इज अ वेरी वैलिड थिंग टिल यू हैव रियलाइज्ड इट, बिकॉज सोल इज नॉट समथिंग दैट यू कैन सी, इट इज अ मैटर ऑफ रियलाइजेशन। तो फिर भगवान ने 2.31 से लेकर 2.38 तक ना इन 8 वर्सेस में उस कैटेगरी को केटर किया जो कि नहीं समझ सकते ज्ञान को, जिनको नहीं पता कि क्या देह, क्या देही, क्या सोल है। तो भगवान कहते कि ठीक है, सेम चीज अपनी सुप्रीम गोल को पहुंचने के लिए अलग अलग रास्ते बता रहे हैं। तो पहला रास्ता ज्ञान का बताया, और ये रास्ता जो है ये है कर्म का रास्ता, है ना। और बेसिकली इसमें कर्म कांड बता रहे हैं कि द सेम थिंग, द सेम रियलाइजेशन कैन बी डन बाय परफॉर्मिंग योर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज। अब क्वेश्चन कैन कम, हमारी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज है क्या, हमें क्या पता हमारी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज क्या है ना। क्योंकि जब तक आप काम कर रहे हैं, अब हम ड्यूटी से समझते हैं जो जॉब हमें मिलेगी, जो वेल पेइंग जॉब होगी वो हमारी ड्यूटी हो जाएगी। पर यहाँ पे द टर्म दैट कृष्णा wanted all of us to understand was वर्ण आश्रम धर्म, है ना, कि हम लोग अलग अलग वर्णों से और अलग अलग आश्रमों से जुड़े हैं। वर्ण क्या है? 4 सोसाइटी के वर्ण भगवान ने बताए थे, जो कि बेसिकली बाद में पोल्यूट होके उनको पीपल हैव स्टार्टेड यूजिंग फॉर देयर एडवांटेज। उन्होंने आपकी नेचर के हिसाब से आपको 4 वर्ण दिए थे। क्या दिए थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई एक से बड़ा या छोटा है। पहले जमाने में गुरुकुल हुआ करते थे, जहां पे सारे स्टूडेंट्स, राजा के बच्चे भी वहीं जाते थे, और उनको उनकी एबिलिटीज के हिसाब से सेग्रीगेट कर दिया जाता था। जिसका ध्यान ज्यादा ज्ञान में होता था उसको बोला जाता था तुम ब्राह्मण, तुम सारी नॉलेज वाले काम करो। जो हमेशा हाइपर रहता था, लड़ूंगा, जिसके अंदर बहुत पैशन होता था, उसको बोल दिया जाता था तुम क्षत्रिय हो। और जो बिल्कुल हिसाब किताब, हम में से भी कई हम लोग, वी कैन आइडेंटिफाई विच कैटेगरी वी बिलोंग टू, यू नो। द एग्रेसिव वंस, दे नो दैट, जिनके अंदर ये जज्बा है दैट आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, वो क्षत्रिय हो भाई तुम
तुम किसी भी फैमिली में बोर्न हुए वो मत सोचो, बाय नेचर भगवान ने बताने की कोशिश की थी कि इफ वी स्टिक टू अवर ड्यूटीज एज पर अवर कैरेक्टरिस्टिक विल फ्लरिश मोर। अभी जो सारी दुनिया इतनी खराब हो रही है वो इसीलिए हो रही है क्योंकि कोई अपने वर्ण के हिसाब से चल नहीं रहा, बुद्धि ज्ञान वाली है नहीं पर ज्ञान वाली पोजीशंस लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो डिटोरिएशन हो रही है सोसाइटी की। और तीसरा होता है जो वैश्य कौन होते हैं, जो मनी, हु कैन मैनेज फंड्स, हु नो हाउ टू मेक बजट्स, है ना। और फोर्थ कैटेगरी होती है जिनका इन तीनों में से किसी में इंटरेस्ट नहीं होता, वो कहते हैं हमसे काम करा लो जितना मर्जी, सुबह शाम हमसे काम करा लो, दे आर शूद्रस। हालांकि शास्त्र बताते हैं कि अब हम सब शूद्रज है क्योंकि हमारे पास और कोई क्वालिटी रह ही नहीं गई, हम लोग सारे ही शूद्र हैं। इनको कहते हैं हमारा वर्ण। और आश्रम होता है जो कि हमारी स्क्रिप्चर्स हमें एक्सप्लेन करते हैं कि हाउ वी हैव टू लीड अवर लाइफ, है ना। 0 to 25 इज अवर विच, सबसे पहले कौन सा होता है आश्रम? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य। दैट मीन्स फॉर दोस 25 years you have to just save yourself, get education, get complete knowledge to take care of your other 3 ashram. पर ऐसा होता नहीं है ना, 25 का इंतजार आजकल किसको हो रहा है, सब कुछ पहले ही करने का, क्योंकि वी हैव डिवाइसेस, वी हैव अपॉर्चुनिटीज, सो वी हैव स्पॉइल्ड अवरसेल्फ एनीवेज। पर फिर 25 से 50 तक इज योर गृहस्थ आश्रम। देयर आर प्रोविजंस। ऐसा नहीं है कि हर कोई जो यहाँ पैदा हुआ है सिर्फ भक्ति करने के लिए सबको बाबा जी बनना पड़ेगा या सब कुछ त्याग करना पड़ेगा। प्रोविजंस है, आप इंजॉय करना चाहते हो लाइफ को, यू हैव वेज। 25 to 50 इज गृहस्थ आश्रम, बट इंजंक्शंस है, मैरी 1 person, है ना, उसके साथ स्टिक करो, उसके साथ यू कैन रेज अ कृष्ण कॉन्शियस फैमिली। देयर आर, कोई इंजॉयमेंट से प्रॉब्लम नहीं थी भगवान को, वे विचार से प्रॉब्लम थी। एक के साथ रह रहे हो, एक के बारे में सोच रहे हो, तीसरे के साथ जा रहे हो आश्रम, कोई उसमें आपकी सैंक्टिटी, अपनी अपनी पीस इसीलिए खराब हो जाती है लोगों की, है ना। पर और एज भी दी गई कि 25 से 50, इसका मतलब ये नहीं कि 30, 35, 40 तक आप वेट कर रहे हो फॉर द परफेक्ट पर्सन टू कम, तब तक आपका आश्रम एंड होने वाला है। अगर आप 50 के बाद इस आश्रम में रहोगे तो आप डिफाई कर रहे हो भगवान के दिए हुए रूल्स और पैरामीटर्स को। सो यू कैन नॉट चेंज एंड यू कांट प्ले विद इट। 1-2 साल का इधर उधर चलता है, बट यू कांट प्ले विद इट, बिकॉज ये बहुत सोच समझ के भगवान ने, यहाँ मटेरियल वर्ल्ड उन्होंने बनाया ना, तो मटेरियल रूल्स देकर भेजा कि ठीक है इंजॉय करना है यहाँ पे, तो पर फॉलो द रूल्स। एंड देन फ्रॉम 50 to 75 is Vanaprastha, where husband and wife collectively they both go and they study more about Vairagya, more about the Supreme, and क्या करना है उनको जीवन के लिए। अब अपने बच्चों को चाबियां देते हैं और घर से निकल जाते हैं। ऐसा नहीं कि अब मैंने ये घर बना लिया, मैं यहीं चिपकूंगा जब तक मैं मर जाऊंगा, फिर उसके बाद यहीं छिपकली बन के भी चिपकूंगा क्योंकि मैंने बनाया ये घर, है ना। ऐसे ही होता है ना, इतनी ज्यादा अटैचमेंट हो जाती है कि यहाँ से जाना ही नहीं चाहते। मरने का डर भी इसीलिए होता है, इतनी मेहनत की मैंने, पूरी जीवन मैंने लगा दिया ये घर बनाने में, अब इस घर को कैसे छोड़ दूं बहू बेटे के हाथ में। बट रूल्स ये है कि आप दे दो उनको चाबियां और चले जाओ, आपका रोल यहीं तक था। फिर अब आपकी डिटैचमेंट की स्टेज, और फिर उसके बाद एंड के 25 साल कंप्लीट संन्यास, आप वापस, जिसमें रूल्स के हिसाब से वाइफ कम बैक्स एंड द सन और डॉटर टेक्स केयर ऑफ द मदर एंड फादर टेक्स कंप्लीट संन्यास। तो ये 4 आश्रम, तो वर्ण और आश्रम। अब हर कोई अगर अपनी ड्यूटीज के साथ स्टिक रहेगा तो भी भगवान के पास पहुंच सकता है। ये 31 से 38 तक भगवान यही बताना चाह रहे हैं। इस पोर्शन को कहते हैं कर्म कांड, योगा लैडर में सबसे नीचे आता है। आई थिंक नियति विल टॉक अबाउट योगा लैडर ऑल्सो। तो कर्म कांड सबसे नीचे आता है। भगवान तक पहुंचने के बहुत सारे तरीके हैं, पर भगवान ने कुछ भी नहीं अनटच छोड़ा। आप अपनी वृत्ति के हिसाब से अपनी योगा लैडर की अपनी सीढ़ी पकड़ लो और उसी सीढ़ी से आप धीरे धीरे ऊपर बढ़ जाओगे, प्रोवाइडेड कर्मकांड जो कि सबसे नीचे की सीढ़ी है, एटलीस्ट वो सीढ़ी पे तो चढ़ो, विच इज जस्ट अबव द एनिमलिस्टिक वे ऑफ लिविंग, कि हमें कोई रूल फॉलो नहीं करना जी, 1 life टू लिव, हमें तो सिर्फ मजे करने हैं, हम यहाँ आ गए हैं और हमारे को तो नहीं मालूम कुछ भी, हमें क्या भगवान ना हमने देखा है, पता नहीं देखेंगे कि नहीं देखेंगे, तो हमें सिर्फ मजे करने हैं। तो देन इट इज, फिर आप उस सीढ़ी पे चढ़े भी नहीं। तो एटलीस्ट फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस लैडर इज कर्मकांड। कहीं यहाँ से तो शुरू करो कि ठीक है हम भगवान के बनाए हुए इंजंक्शंस के हिसाब से ठीक से इंजॉय करते हुए ये जीवन जीना चाहते हैं। हमसे नहीं होता जी त्याग, हमसे नहीं होता कि हम लहसुन प्याज सब छोड़ दें और अपना जीवन को नीरस बना दें। हमें तो खानी है अच्छी अच्छी चीजें,
तो ठीक है, डू इट एज पर द इंजंक्शंस। एक अपनी गृहस्थी बसाओ, अपनी वाइफ के साथ, अपने हस्बैंड के साथ रहो, भगवान जी को अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करो, जो खाना है पहले उनको खिला दो और फिर खा लो। सकाम सकाम कर्म हो गया ना। मुझे लड्डू खाना है, मैं लड्डू भगवान को देके, भगवान खा तो लेते नहीं है, भगवान तो सिर्फ पड़ा हुआ देखते हैं, अपनी आंखों से उसको आशीर्वाद देते हैं, खा थोड़ी लेते हैं। तो बस यही साकाम है, लड्डू खाना है, उनके आगे रखा, उसके बाद लड्डू उठाया, अपने बच्चों के मुंह में डाल दिया। सो दिस इज कर्म कांड। अब नेक्स्ट जो वो बताएंगे वो नियति बताएगी। सॉरी, आई जस्ट वांट, आई थॉट ये फॉर द न्यू स्टूडेंट्स दे विल बी वेरी कंफ्यूज कि हमारी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज क्या है। ठीक है, समझ आ रहा है? वृंदा, महक है ना, अवनी, ये सो जो सारे नए बच्चे हैं, दिस वाज बेसिकली फॉर देम। थैंक यू नियति। Okay. Thank you. So we'll go back to 2.38, wherein Bhagwan is saying that fight without considering happiness or distress, loss or gain, victory or defeat, and by so doing you shall never incur sin. तो भगवान सेम चीज बोल रहे कि लड़ो, but लड़ो without attachment. Fight with vairagya. Attachment to kingdom is the desire of a fool. कोई अगर अपने आप को अटैच कर रहा है किंगडम से, then that is just a characteristic of a foolish person. And instead of attaching yourself to the kingdom, attach yourself to the infinite bliss of soul. And that was the reason why भगवान ने एक एक करके सारे souls के characteristics हमें explain करे थे, so that हम kingdom और body से attach होने की जगह soul से attach हो. Because as we've understood, soul is the only thing that travels from one body to the other. So that is 2.38. Before we go ahead, let's actually understand the yoga ladder because it's fresh right now. So सबसे पहले सबसे base में हमारी animalistic life होती है, wherein they say there is no much difference between humans and animals. वो भी खाना खाते हैं, हम भी खाना खाते हैं, वो भी पानी पीते हैं, हम भी पानी पीते हैं, वो भी मेट करते हैं, हम भी मेट करते हैं. The only difference is that humans do it little more sophisticatedly. Yeah, ज़्यादा कोई difference नहीं है. So that is the animalistic life. इसके बाद जब हमें थोड़ी चीजें समझ आने लग जाती है, then is the कर्म कांड or the human life that माता जी just explained. सकाम कर्म योग, कि कुछ ना कुछ हम expect कर रहे हैं रिटर्न में. कर्म योग भी दो तरीके के, पहले सकाम कर्म हो गए, फिर एक जब हमारे पास उतनी बुद्धि और उतनी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, देन दैट तब निष्काम कर्म योग आ जाता है. पहले तो ये था कि अच्छा मुझे लड्डू खाने हैं तो मैं लड्डू का भोग लगा लेता हूँ और फिर अपने बच्चे को खिला दूंगा. बट निष्काम कर्म वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न. हमें पता है अच्छा राधा रानी फेवरेट इज अरबी, तो आज अरबी बनाते हैं सो दैट राधा रानी को खुशी मिले. तो सब कुछ भगवान की खुशी के लिए हो रहा है, wherein we are not expecting anything in return. That is Nishkam Karma Yoga. Above that in the yoga ladder is Gyan Yoga. ज्ञान के ऊपर आता है जो हम most of us we call ourselves certified Ashtanga yoga teachers. So that is Ashtanga और ध्यान योग. अब ध्यान can also lead us to two ways. एक ध्यान होता है जिसमें हम ब्रह्मन रियलाइजेशन कर रहे हैं. We all know the three realizations. एक होता है ब्रह्मन, एक होता है परमात्मा और एक होता है भगवान. ब्रह्मन जो हम सुनते हैं कि अच्छा लाइट पे मेडिटेट कर लेते हैं, दैट इज द ब्रह्मन रियलाइजेशन. परमात्मा इज समवन हु रिजाइड्स विद इन ऑल ऑफ अस. दैट इज व्हाट ध्यानीज यूजुअली मेडिटेट ऑन. सो दैट इज परमात्मा. जब हमें समझ आ गया कि हाँ भगवान का एक फॉर्म है एंड उन्हीं फॉर्म के साथ हम कॉन्स्टेंटली रेसिप्रोकेट कर सकते हैं, सो दैट इज भगवान रियलाइजेशन. अगेन इसमें भी कुछ ऊपर या नीचे नहीं है. दीज आर जस्ट थ्री डिफरेंट रियलाइजेशंस, आइदर ब्रह्मन और परमात्मा और भगवान. सो लास्ट वी लेफ्ट एट अष्टांगा और ध्यान. या तो ध्यान योग हमें ब्रह्मन रियलाइजेशन की तरफ लेकर जा सकता है, या इट कैन लीड अस टू परमात्मा रियलाइजेशन. एंड इवेंचुअली परमात्मा रियलाइजेशन विल लीड अस टू Bhakti Yoga, and Bhakti Yoga on top is Bhagwan realization, which is the ultimate idea of yoga. So from animalistic life to Karma Kand to Karma Yoga to Gyan Yoga to Ashtanga Yoga. Ashtanga Yoga leading us to two paths, Brahman realization or Paramatma realization. And Paramatma realization finally leading us to Bhakti Yoga, and Bhakti Yoga leading us to
Bhagwan realization. So that is the full yoga ladder and the 3 realizations: Brahman, Paramatma, Bhagwan. Yeah. I will share another class recording wherein Mataji has explained all three realizations deeply. So maybe we can listen to that. Yes, And Mataji. also, if I can add that Please. आफ्टर कर्मयोग ऐसा नहीं है कि ये स्टेप बाय स्टेप लैडर पे हर सीढ़ी पे चढ़ना होगा. एनीथिंग कैन डायरेक्टली टेक यू टू द टॉप, है ना. किसी को भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया आपने तो आप भक्ति भगवान तक पहुंच सकते हो. सो कोई नेसेसिटी नहीं है कि आज अगर आप कर्म योगी हो, आपने ये पाथ चुना है कि मैं सेवा करना चाहता हूँ भगवान की, मैं कर्म से भगवान तक पहुंचना चाहता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि फिर ध्यान में बैठना ही बैठना है या ज्ञान लेना ही लेना है. आपका कर्म ही भगवान तक आपको पहुंचा देगा. सिर्फ ये स्टेप लेने की जरूरत है और डिसाइड करने की कि विच पाथ इज फॉर मी. अपनी वृत्ति के हिसाब से आपके साथ क्या चीज सबसे ज्यादा मैच करती है. Yeah. This Bhagwan will reveal in the 18th chapter. So we'll have to wait for the 18th chapter, wherein he'll reveal the secret and then the confidential knowledge and the most confidential knowledge. तो वो सब explain करते हैं कि मैंने तुम्हें समझा दिया कि ये योगा लैडर होती है, तो तुम या तो ये follow कर सकते हो or you can directly jump and come to me. So this we'll have to wait. Mataji has already told us, so win-win situation for us also. 2.39, Sanskriti, I think you were reading. Thus far, I have described this knowledge to you through analytical study. Now listen as I explain it in terms of working without fruitive results. O son of Pratha, when you act in such knowledge, you can free yourself from the bondage of works. Yeah. तो अभी तक तो भगवान हमें सकाम कर्म बता रहे थे. अब अचानक से he introduces निष्काम कर्म योग. Nishkam again is something wherein we are not expecting anything in return. And now Bhagwan is calling Nishkam Karma Yog Buddhi Yog. अब बुद्धि योग क्या होता है हमने तो कभी सुना ही नहीं है. So बुद्धि योग in itself is not a practice, but when we start putting gyan, very carefully listen, gyan on the platform of karma with the mood of bhakti is known as buddhi योग. तो तीनों चीजें इन्वॉल्व हो गई. इसमें हमारा ज्ञान भी लग रहा है, हमारा कर्म योग भी लग रहा है और फिर भक्ति भी लग रही है. सो दैट इज व्हाट ही इज कॉलिंग बुद्धि योग. भगवान बार बार बुद्धि योग की बात करेंगे, बट दिस इज द मोस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग दैट वी कैन हैव. ज्ञान क्यों? क्योंकि भगवान ने अभी इतना टाइम लगाया हमें पूरा सोल एक्सप्लेन करने में. कर्म क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले हमें सकाम कर्म बताया और अब निष्काम कर्म बता रहे हैं. एंड सून ही विल आस्क अस टू सरेंडर ऑन टू हिम. So that will be Bhakti Yoga. So when we start performing our karmas, putting Gyan in mind with the mood of Bhakti is known as Buddhi Yoga. And this is the first time Bhagwan is explaining Buddhi Yoga to us in 2.39. That Buddhi Yoga is actually Nishkam Karma Yoga, wherein we are not expecting anything in return, where we are free of bondage. ठीक है. इससे पहले तक भगवान बस हमें ज्ञान योग समझा रहे थे. अब कर्म योग की स्टार्टिंग हो गई है. एंड नेक्स्ट चैप्टर 3 विल ओनली फोकस ऑन कर्म योग. सो दैट इज द स्टार्टिंग. या सेम भोग का एग्जाम्पल जो हमने समझ लिया था, जब हम भोग लगा रहे हैं कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन रिटर्न, दैट बिकम्स सकाम कर्म योग. बट जब हम सब कुछ भगवान की खुशी और भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, देन दैट बिकम्स निष्काम कर्म योग. So this is 2.39. That Buddhi Yoga mentioned is the devotional service of Lord. 2.40. In this endeavor, there is no loss or diminution, and a little advancement on this path can protect one from the most dangerous type of fear. Yeah. So wow, Bhagwan is saying कि थोड़ा भी investment हो जाए spiritual life में, that can also protect us. Why? Because that is something that will give us eternal results. हम बॉडी के लिए कुछ भी कर सकते हैं. फिजिकली वी कैन गेट 200 पुशअप्स एंड 20 dips, and then we can also get multiple PhDs. But at the end of the day, when we leave the body, वो हम सब यहाँ पे अपनी डिग्रीज एंड अपनी जितनी भी बॉडीली अचीवमेंट्स है वो यहाँ पर ही छोड़ के जाएंगे. बट थोड़ा सा भी हमने एक बारी बैठ के, जैसे रामायण में भी हम उस दिन पढ़ रहे थे कि राम का नाम बस 3 नाम ले लिया,
that is also equal to reading entire Vishnu Sahasranam. So that is कि थोड़ा सा भी any investment we make in the spiritual life will give us eternal results. और कितनी अज्ञात सुकृति भी बन जाती है, that कितनी pious activities हम without knowledge कर लेते हैं. For example, हमारे घर के पास कृष्णा नगर है और हम हर रोज बोल रहे हैं अच्छा कृष्णा नगर से सब्जी लेकर आ जाओ, कृष्णा नगर से ये ले आओ. तो without even knowing we are taking Krishna's name. And that is also spiritual advancement कि पता भी नहीं है, मतलब still. So that is the mahima of spiritual knowledge. अब इसमें माता जी ने 3 चीजें mention करी थी. As all of you are always making notes, maybe you can unmute yourself and tell the 3 things that explains the entire verse in gist. जो माता जी ने बोला था, please make a note. Was it the 3 benefits? Hmm. Okay. So the first benefit was कि there is no loss. मतलब कुछ भी करोगे ऐसा नहीं है कि कुछ खराब हो जाएगा तुम्हारे साथ. So उसका कोई चांस नहीं है नेगेटिव में जाने का. Secondly, there is no adverse effect as you same thing कि एक तो कोई नेगेटिव में नहीं जाएगा. Secondly, whichever position that you are at in life or with this entire process, even if you put in a little bit of effort, तो ऐसा कोई chance नहीं है कि you will fall down. Okay, so no adverse effect, no loss. And the third was that, as you already mentioned, small effort, big result. Yeah, a little effort lasts forever. Beautiful. Now comes 2.41. Sanskriti. एक मिनट. थर्ड वन इज इट विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम महतो भयात, बड़े से बड़े डर से, जो कि विच इज अ वेरी वेरी प्रैक्टिकल थिंग फॉर ऑल ऑफ अस. हम सबको डर लगता है, तो थोड़ा सा भी एफर्ट महतो भयात, बहुत बड़े भय से भी हमारी रक्षा कर लेगा एक नाम. एंड यू कैन ऑल ट्राई इट. कभी ऐसी कोई सिचुएशन आए जब डर लग रहा होगा, सिर्फ भगवान का नाम लेके देख लेना. ना वो डर भाग गया तो यू कैन कम एंड कंप्लेन टू मी एंड हेल्प मी रिस्पॉन्सिबल. Those who are on this path are resolute in purpose, and their aim is one. O beloved child of the Kurus, the intelligence of those who are irresolute is many-branched. Yeah, so here Bhagwan is talking about one-pointed buddhi. व्यवसात्मिका बुद्धि कि एक चीज पे फोकस करो. और हम लोगों की बुद्धि अभी क्या है? इट्स बहुत शाखा. ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, ये भी अचीव कर लेंगे, वो भी अचीव कर लेंगे. तो भगवान बता रहे हैं कि प्रैक्टिस भक्ति विद बिजनेस लाइक प्रोफेशन. व्हाट डज ही मीन लाइक दैट? जैसे जिन लोगों का भी बिजनेस है, देयर इज अ टाइम फॉर एवरीथिंग. इतने टाइम पे ऑफिस भेजना है, इतने टाइम पे ये इन्वेस्टमेंट करनी है, ये देयर इज सो मच प्लानिंग दैट गोज. So he is saying कि भक्ति and spirituality and devotional service भी ऐसे ही करनी चाहिए with a business mind, keeping profit in mind. कि जितना जितना भगवान का नाम लेंगे, जितना जितना भगवान के बारे में सुनेंगे, उतना ज्यादा प्रॉफिट मुझे मिलेगा. जैसे हम बिजनेस में लगाते ना कि ऐसे बिजनेस करेंगे तो प्रॉफिट मिल जाएगा, इतना बेचना पड़ेगा, इतना करना पड़ेगा. तो वैसे ही भक्ति का भी सेम है. इट शुड बी प्रैक्टिस विद बिजनेस लाइक प्रोफेशनलिज्म. या the idea for us to make our adhyatmic जीवन our main goal. पूरे time profit is remembrance of God. And what is loss in this business? Forgetfulness. जब हमने भगवान को याद नहीं करा, that means हमारा business बिल्कुल loss में जा रहा है. So every night we should maintain a balance sheet and then we should see कि कितना profit हुआ आज के दिन में, कितना loss हुआ. That is what Bhagwan is trying to explain here. That this is what is Vyavasatmika intelligence. समझ जाना that Krishna is the ultimate source. And if he is satisfied, then we are satisfied. That is 2.41. 42, 43. Men of small knowledge are very much attached to the flowery words of the Vedas, which recommend various fruitive activities for elevation to heavenly planets, resultant good birth, power, and so forth. Being desirous of sense gratification and opulent life, they say that there is nothing more than this. Yeah.
तो भगवान एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो लोग कौन होते हैं जिनकी स्मॉल नॉलेज होती है. Men of small knowledge are always bothered by ritualistic practice and they are not bothered by spiritual practice. बस ये कर लो तो ये मिल जाएगा, पहले इच्छा आएगी, फिर कामना होएगी, फिर तृष्णा होगा, फिर और डिजायर होगा, then we will start working towards that desire, फिर वो अचीव करना, फिर उसको इंक्रीज करना. That is what he is explaining. Yeah, your progress on the spiritual or material path depends on the efforts you put. जितना एफर्ट हम जिस डायरेक्शन में डालेंगे वो ही हमें मिलेगा. So that is what he is explaining here. But ऐसा इंसान जो जिसकी भौशाका बुद्धि होती है, that person is always completely anxious because हमेशा किसी ना किसी तरीके से he is trying for sense gratification. So again, he is explaining the same thing, that men of small knowledge are always bothered by ritualistic activities. ये करो तो ये मिल जाएगा, वो करो तो वो मिल जाएगा. That is 2.42, 43. 44. In the minds of those who are too attached to sense enjoyment and material opulence, and who are bewildered by such things, the resolute determination for devotional service to the Supreme Lord does not take place. Yeah. The soul does not change. Same thing. But as we keep fixing our attention on sense objects, the option keeps on changing. कभी इसकी प्राप्ति हो जाए, कभी वो हो जाए. Desires keep on changing जैसे जैसे हम अपना attention different चीजों में रखते रहते हैं. But if we are fixed and if we have a spiritual goal, then we are no longer involved in multiple calculations. Then constantly we are focusing on one thing. And when we are focusing on one thing, then we become free from anxiety. वैसे ही पर्पट पढ़ेंगे तो इसमें explained है that Vedas give all different options to enjoy in the mode of sattva, rajas and tamas. And Krishna हमें बोल रहे हैं कि कैसे हम इन तीनों चीजों से ऊपर उठ सकते हैं. सेम जो हमने लास्ट वर्स में पढ़ा, that वेदास में सारी फ्लावरी लैंग्वेज है. तो उन्होंने सत्व गुण लोगों के लिए, रजस के, तमस के, हर गुणी इंसान के लिए डिफरेंट चीजें मेंशन करी है. बट सीक्रेटली भगवद गीता में, विच इज वेदांत, वेदास का अंत, ही इज आस्किंग अस टू राइज अबव ऑल ऑफ दीज थिंग्स. सो दैट इज 2.44. लास्ट वन संस्कृति 45. The Vedas deal mainly with the subject of the three modes of material nature. O Arjuna, become transcendental to these three modes. Be free from all dualities and from all anxieties for gain and safety, and be established in the self. Yeah. So भगवान ये चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं that self interest cannot be accomplished to selfish thinking. अगर हम selfishly सोचते रहेंगे, then we won't be able to achieve this. We can only achieve this by selfless thinking. Yeah. And कर्म कांड में यही होता है. It's all about selfish sense gratification. And जब selfish sense gratification होगा, that will only cause anxiety. Why? क्योंकि या तो हम गेन के बारे में सोच रहे हैं या हम लॉस के बारे में सोच रहे हैं. But Bhagwan here is saying that to be free from all dualities and from all anxieties for gain and safety and be established in the self. He is asking us to rise above this. Yes, Mataji. या सो इसमें कई लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, स्पेशली ये जो वर्स पहले भी आया है 42-43 यामी माम पुष्पिताम, के जो वेदों की लैंग्वेज है वो बहुत फ्लावरी है, बहुत अलंकृत है. इसको गलत नहीं लेना, वेद गलत नहीं है ना. इंपॉर्टेंट थिंग टू नोटिस, व्हाई कृष्णा इज टॉकिंग, भगवान के मुंह से ही निकले हैं वेद, तो उसका वो अपमान नहीं कर रहे. वो सिर्फ ये बता रहे हैं कि जो मार्ग है, जो अगर आपने मार्ग चुना है मुझ तक पहुंचने का, तो वेदों की उन चीजों को आप अवॉइड कर सकते हो. क्योंकि वेदों में ना क्या है, वेद जो हमारे है ना, दे आर डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस. सबसे पहले कर्म कांड है, उसके बाद ज्ञान कांड है, और बहुत छोटा सा उपासना कांड है. तो जनरली पीपल आर जस्ट स्टक टू कर्म कांड, वो ज्ञान और उपासना तक पहुंच ही नहीं पाते, जो कि विच इज अगेन स्टेजेस हैं. बट लोग इतने ज्यादा बिविल्डर हो जाते हैं एंड दे गेट एक्साइटेड बाय कर्म कांड, क्योंकि देयर आर सो मेनी रिचुअल्स विच आर मेंशन्ड इन वेदास विच कैन गिव यू इंस्टेंट प्लेजर, है ना. ये वाला आप ये पीपल पे जाके आप तेल चढ़ा दें, ऐसा हो जाएगा, है ना. यू डू दिस थिंग
this is the reward. So and our mentality over different lifetimes is only reward seeking. मेरा फायदा क्या है, भक्ति तो चलो साइड में गई, मुझे क्या मिलने वाला है. तो पीपल गेट वेरी स्टक टू दैट. अब यहाँ भगवान बार बार इसको बताने की कोशिश कर रहे हैं, त्रैगुण्य विषया वेदा जो 2.45 है, कि जो वेद है ना वो 3 गुणों के बारे में बहुत डिस्कशन करेंगे. 3 गुण क्या है? दैट मीन्स योर मटीरियल लाइफ. बट व्हाट आर वी आर स्पिरिचुअल सीकर्स. तो डू वी हैव टू गेट स्टक इन दैट, है ना? 3 गुणों से ऊपर भगवान बैठे हैं. मान लो with these 3 fingers, the lower one is the mode of ignorance, tamogun. The middle finger is mode of passion, और क्या कहते हैं उसको हिंदी में? रजस. और the top is mode of goodness, सत्व गुण. और अब हम सोचे कि सत्व, हम भगवान की बात करें, सत्व गुण में ही तो है, तो ठीक है, that is not bad to be in the material existence. But कृष्णा इन तीनों में नहीं है, कृष्णा इन तीनों के ऊपर है. तो if that place is called transcendence. तो भगवान कह रहे हैं इन तीनों वेदों के जो त्रैगुण्य विषय, इनके ऊपर की बात सोचो अर्जुन. इन तीनों में मत घूमते रहो. यहाँ बहुत फ्लावरी लैंग्वेज मिलेंगी, बहुत सारे प्रलोभन दिए जाएंगे, बहुत सारे फायदे दिखाई दिए जाएंगे, तुम उसमें अटकना मत, तुम इसको क्रॉस करो, वहां मैं बैठा हूं. तो इसलिए बता रहे हैं. बट कई लोग इससे कंफ्यूज हो जाते हैं और बोलते हैं अरे तो इसका मतलब वेद खराब है, ये भगवत गीता ही खराब है, ये तो वेदों को खराब बोल रही है. वेद तो भगवान ने बोले, वेद कैसे खराब हो सकता? खराब नहीं है, इट इज नॉट ऑफ एनी यूज टू अस, है ना? जो स्पिरिचुअल सीकर है उसके लिए ये वेदों की जो अलंकृत भाषा है वो उसको परेशान कर देगी. वो फिर इसी में लगा रहेगा, ये वाला रिचुअल करता हूँ इससे मेरा बड़ा घर आ जाएगा, फिर बड़े घर का रिचुअल करूंगा उससे और बड़ी हवेली आ जाएगी. बट देयर इज नो एंड टू इट. तो कृष्णा कह रहे हैं फिर फंसे रहोगे इसमें, निकलो इसमें से. त्रिगुण्य विषय. या सो दिस पॉइंट इज क्लियर? He'll clarify, Krishna will clarify it even more in 2.46. Arpita, आप पढ़ोगे? All purposes served by a small well can at once be served by a great reservoir of water. Similarly, all the purposes of the Veds can be served to one who knows the purpose behind them. Yeah. So here he's saying conclusion of Vedas is to serve and please Krishna. Period. That is it. Yeah. जैसे purpose of a well is to be served by a water body, वैसे ही purpose of Vedic literature is to extricate the soul from its tendency to enjoy and bring him to the stage of serving Krishna. Yeah. महाराज जी ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं. जैसे छोटे बच्चे होते हैं और शाम के टाइम पे वो बाहर खेलने के लिए जाते हैं और खेलते खेलते वो इतने मगन हो जाते हैं कि उन्हें यही लगता है लाइफ है. वहां माँ पुकार रही होती है कि चलो 7 बज गए, खाने का टाइम हो गया है, वापस आ जाओ. बट बच्चे को लगता है नहीं यही लाइफ है, मुझे इतना मजा आ रहा है, क्यों मेरे पापा मुझे वापस बुला रहे हैं, क्यों मेरी मम्मा मुझे वापस बुला रही है, मुझे यहाँ पे ही खेलना है, मुझे नहीं करना. एंड माँ बोलती है नहीं घर आने का टाइम हो गया है. बोलते नहीं दिस इज, यही तो फन है, यही तो लाइफ है, वो मुझसे मेरी खुशी छीन रहे हैं, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना. बट क्या करना पड़ता है, माँ को आके हाथ पकड़ना पड़ता है और घर लेके जाना पड़ता है, बिकॉज दैट इज ट्रू होम. वहां पे ही शेल्टर मिलेगा. जस्ट लाइक दैट वी सोल्स हैव स्टार्टेड एंजॉइंग दिस मटेरियल लाइफ और हमें लगता है नहीं यही है, क्यों क्यों करनी है भक्ति, क्यों करना है, दिस इज सो बोरिंग. बट देन भगवान नाउ सेंस डिफरेंट हिज ऑन्टराज या कभी खुद से आते और हमारा हाथ पकड़ के ही ट्राइज टू टेक अस बैक टू आवर ओरिजिनल होम. So that is what is explained here, that this is the conclusion of Vedas. We souls are the part and parcel of Bhagwan, and at the end of the day, we need to serve Krishna. That is it. So that is 2.46, which indirectly only talks about Bhakti Yoga. 2.47. You have a right to perform your prescribed duty, but you are not entitled to the fruits of action. Never consider yourself the cause of the result of your activities and never be attached to not doing your duty. Yeah, the very, very famous verse. Again, 2.47 is only talking about Nishkam Karm Yog. इसमें 4 instructions दे रहे हैं भगवान को. I would have asked you, but we are running out of time, so I'll only mention those 4 instructions given by Bhagwan were: first, that we need to do our duty. The second one,
Don't think about the fruits. Perform your duty without thinking about the fruits. Third one, give up your pride. जितना भी pride है, जितना भी अहंकार है, उसे छोड़ दो. And fourth, don't be attached to inaction. Don't get attached. Yeah. So these are the 4 instructions that Bhagwan is giving us directly. Yeah. In short, when someone performs activity and craves for result, that is just impure consciousness. जब हम कुछ भी काम कुछ expect करने के return में करते, that means अभी भी हमारी consciousness impure है. And क्यों impure है? क्योंकि इंसान को लगने लग जाता है कि हम doer है. That's why he's saying that you are not the doer, he is the doer. That means don't expect anything in return. 2.48. Please give me 10 more minutes and then we'll wrap for today. 2.48. Perform your duty equipoised, O Arjuna, abandoning all attachment to success or failure. Such equanimity is called yoga. Yeah. So for everyone जो अपने status में डालता है yoga is for the mind, body and soul, he is giving us the true definition of yoga, that performing your duty equipoised, abandoning all attachment to success or failure. Such equanimity is called yoga. Yeah. In short, purport जब पढ़ेंगे तो yoga is a combination of 5 elements. And what are those 5 elements? Action, karma, knowledge, gyan, detachment, meditation, which is dhyan, and 5th one is devotion or bhakti yoga. These 5 elements are a combination of yoga, और भगवान पूरे भगवत गीता में ये ही explain कर रहे हैं. But what is the difference? जब हम action या कर्म योग की बात करते हैं तो इसमें बस कर्मा involved होता है. जब हम knowledge या ज्ञान योग की बात करते हैं तो इसमें knowledge भी involved होती है और कर्म योग भी involved होता है. जब हम detachment और meditation की बात करते हैं तो इसमें पूरा ध्यान, ज्ञान और कर्म included होता है. And जब हम भक्ति की बात करते हैं तो इसमें सब included होता है. Bhakti is incomplete without meditation, without detachment, without knowledge, and without action. So that is the definition. कर्म में बस कर्म होता है, ज्ञान में ज्ञान और कर्मा होता है, मेडिटेशन एंड डिटैचमेंट में हमारा ध्यान, ज्ञान और कर्मा होता है, बट भक्ति में सब कुछ इंक्लूडेड होता है. There's bhakti also, there's ध्यान also, there's ज्ञान also, there's karma also. So that is what is explained. 49. O Dhananjay, keep all abominable activities for disdain by devotional services, and in that consciousness surrender unto the Lord. Those who want to enjoy the fruits of their work are misers. Very smartly, Krishna is saying surrender unto the Lord. He is not saying surrender unto me. अभी भी बोल रहे हैं हाँ, surrender unto the Lord. Those who want to enjoy the fruits of their work are misers, कंजूस. So Bhagwan in short is saying take shelter of me, and this shelter is known as Sharanagati. किसमें? निष्काम कर्म योग में. Don't expect. जब आप निष्काम कर्म योग लगाओगे, that means you're using your buddhi, which is known as buddhi yoga. Reason why Krishna gives so many spins while speaking is because different people have attraction to different types of practices. That's why Bhagwan ने सारी चीजें explain करी है. ध्यान भी explain करेंगे, कर्म भी explain करेंगे, ज्ञान भी explain करेंगे, भक्ति भी explain करेंगे, because he knows कि different type of लोग भगवत गीता खोल के पढ़ेंगे, and everyone are not on the same page, and everyone does not have the same understanding. That's why in Gita he takes a lot of spins and turns. What if this sort of a person is reading? What if that sort of a person is reading? I have to cater to all of their needs. That is the divine creator. So he is finally asking us to take shelter of Nishkam Karma Yoga. 2.50. A man engaged in devotional service rids himself of both good and bad reactions, even in this life. Therefore, strive for yoga, which is the art of all work. Again, another definition for yoga is explained here. Krishna is asking Arjun,
amongst work, what is the highest work? And what is Krishna saying? That action performed with indifference to result is called yoga, wherein we are not expecting anything. And this skill and this art is called kaushalam. That is the word that is being used in the verse. Okay. This is 2.50. That Gita is the topmost secret available to mankind, that is openly available, but everyone cannot access it. There's a process that one needs to go through it to taste it. So that is 2.50. 2.51. Arpita, आप ही पढ़ लो. Oh, I think she's frozen. Sarvagya, can you read? 51, 52, 53, 54. Only 4 for today. The wise, endowed with equanimity of intellect, abandon attachment to the fruits of actions, which bind one to the cycle of life and death. By working in such consciousness, they attain the state beyond all suffering. Should I read all? No. You read 51, right? Yeah. Where did you read it from? I have Swami Mukundanand Vadi Gita. Okay. ठीक है. Maybe I can ask someone else to read. Okay. Almost the same, but just different. अच्छा, इसलिए मुझे लगा. ठीक है. So here in 51, Krishna is saying that from the performance of Nishkam Karma Yoga, one will develop neutrality. अभी तक तो भगवान ने समझा दिया कि निष्काम कर्म योग करो, but क्यों करो? करोगे, then neutrality develop होगी. Neutrality develop होगी, then we will become indifferent to all subjects. That is 2.51. 52, Pankudi, can you read? Sorry, Sarvagya, everyone has opened the same book now, so thoda easy ho jayega. 52. When your intelligence has passed out of the dense forest of delusion, you shall become indifferent to all that has been heard and all that is to be heard. So before Gita and before we knew all of these things, abhi bhi vessel, not a lot has changed, but there is this concept of me and mine. कि कैसे मैं भोग लो, कैसे मैं कर लो. तो भगवान 52 में बता रहे हैं how we can get out of this duality. This duality is just like a jungle. And जब हम इस मोह से, जब हम इस मोह कलिलम से बाहर निकल जाते हैं विवेक की हेल्प से, then we have realization. Yeah, one will achieve by destruction of doubts and misconceptions by hearing from Krishna. And that is Krishna's message. कि कैसे हम इस मोह कलिलम से, this marshy land, everything around us is like a daldal, but we can get out of this duality with the help of Nishkam Karma Yoga. जब हमें विवेक की प्राप्ति हो जाएगी. So that is 52. Last one for today, 53. When your mind is no longer disturbed by the cloudy language of the Vedas, and when it remains fixed in the trance of self-realization, then you will have attained the divine consciousness. Yeah. So Bhagwan, Mataji ने हमें explain करा था when she was explaining 2.53 that शास्त्र दो तरीके के, एक श्रुति और एक स्मृति. What is श्रुति? श्रुति is something जो भगवान ने directly बोला हो. For example, Vedas. And what is स्मृति? जो किसी ने देख के लिखी हो, जैसे हमारा इतिहास हो गया. But as Bhagavad Gita is a part of Mahabharata, it comes under the category of both Shruti and Smriti. Yeah, that is 2.53. And इसमें explain कर रहे हैं that Samadhi means attaining full Krishna consciousness and is not disturbed by the Vedas. When the ultimate purpose essence is to come out of the cycle of birth and death and engage in eternal service. और इसके बाद भगवान explain करेंगे the symptoms of a smart yogi or the smartest yogi of all, who is a Sthita Pragya. So from 54 to 72, Krishna will explain how a Sthita Pragya walks, how he talks, and how he sits. So that will be the last segment.
and this is it for today. So we can stop here. So आज हमने 38 to 53 में we tried to understand Nishkam Karma Yoga, Sakam Karma Yoga. We understood the definition of Buddhi Yoga. We tried to understand how we can work without expecting the fruits and only doing everything for the pleasure of the Supreme Lord. फिर भगवान ने हमें explain करा 2.47 में how to perform the prescribed duties on the solid foundation of knowledge with the intention of loving devotional service. Then he explained us Karma Yoga with understanding of Gyan Yoga in the mode of Bhakti Yoga. So that was 2.38 to 2.53. 54 to 72 we'll do next class. Characteristics of a smart yogi or a Sthita Pragya. Okay, if you have any doubts, any questions, any realizations. I wanted to ask one thing. Might be a silly thing to ask, but the text 52, when Krishna is saying ki, when your intelligence has passed out of the dense forest of delusion, then you will become indifferent to all that has been heard and all that is to be heard. So Krishna keeps describing, keeps giving us knowledge also. He keeps describing qualities, good qualities also, and then he keeps giving us instructions also. And then another thing he does is he makes promises also to us, जैसे इसके end में जो हमने पढ़ा था इस chapter के end में. So could we look at this one also as one of the promises of Krishna? You can, but this is more than a promise. This is a practical thing he's saying. Yeah, because साइलेंट क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करो ना 2.52 से पहले अर्जुन का क्वेश्चन आ सकता है कि स्टिल डिस्ट्रैक्शंस कैन बिल्डर अस माया कैन थ्रो अस इनटू सम काइंड ऑफ अ प्रलोभन तो क्या करेंगे तो भगवान ये बता रहे हैं कि जब मोह कलिलम से व्हेन योर इंटेलिजेंस विल बी पास्ड आउट ऑफ इट यू विल एक्चुअली बिकम इनडिफरेंट the thing that Niyati explained कि then when we are done with our concept of everything starts with me and mine तो जब वो कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा तो मोह कलिल आपके लिए डिसअपेयर हो जाएगा जो जंगल है वो एकदम सडनली डिसअपेयर हो जाएगा फिर जब मैं और मेरे ही नहीं है तो जितनी भी प्रलोभन माया आपके ऊपर फेंकेगी दैट विल नॉट अफेक्ट यू यू विल बिकम इनडिफरेंट द वर्ड विच इट सेज इज निर्वेदम अन्य मनसक हो जाओगे इनडिफरेंट निर्वेदम आपको वेदना नहीं दे पाएगा फिर वो कोई भी चीज क्योंकि अब आप मान ही नहीं रहे हो आप ड्युअलिटी से ऊपर उठ चुके हो सारी ड्युअलिटीज मी एंड माइंड से स्टार्ट होती है तो ये आपकी प्रॉमिस से ज्यादा इट्स अ प्रैक्टिकल थिंग है ना तो जैसे वी कैन ऑल्सो आस्क अ क्वेश्चन ऐसा कब होगा इतनी चीजें हैं इतना पढ़ने के बाद भी अभी इतनी अट्रैक्टिव लग रही हैं कब होगा तो ये उसका आंसर है कि जब मोह कलिलम से हम गुजर जाएंगे अभी हम मोह में फंसे हुए हैं ना अभी हम इल्यूजन में फंसे हुए हैं मोह का मतलब जो ये कॉन्सेप्ट की वजह से जो डिल्यूजन है हम कि सब ठीक लग रहा है सब सच्चा लग रहा है तो तब तक नहीं होगा तब तक हम इंडिफरेंट नहीं हो पाएंगे बट वंस वी आर विद द हेल्प ऑफ 53 में भी जैसे ना 53 भी वही है कि जब वेद की भाषा आपको बिविल्डर नहीं करेगी जब आपका कर्मकांड से ध्यान हट जाएगा सो प्रैक्टिकल बातें बता रहे कि कैसे होगा क्योंकि किसी का कोई भी किसी स्टेज पे अटक सकता है सो गुड नए बच्चों को समझ आ रहा है जिनके लिए क्लास हो रही है या संस्कृति या I will still recommend that detailed आप सेशंस लेके नियति से जो वर्सेस आपको लगता है ना कि you need to learn more because भगवान ने कही हुई बातें ना इतनी सिंपल नहीं है कि एक ही बार में या 2 लाइन में आपको समझ आ जाएगी हमने एक वर्स पे कई बार एक क्लास लगाई है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनको ठीक से समझो है ना और कोई भी डाउट्स हो तो जस्ट फील फ्री टू आस्क जब किसी का कोई क्वेश्चन नहीं होता ना तो मुझे लगता है उसको कुछ समझ नहीं आया
सीरियसली, बिकॉज भगवान की बात इतनी तो आसान नहीं है कि यहाँ एक सेशन में आपको समझ आ गई होगी। तो मैं अभी यही रिजल्ट निकालती हूँ कि आपको कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि यू पीपल हैव नो क्वेश्चंस, यू डिड नॉट आस्क एनी क्वेश्चंस. So I'm surprised how come without questions you're understanding this so simply, because या तो फिर हमें तो बहुत मुश्किल से समझ आया था, अभी भी नहीं आया एक्चुअली. पर okay, so you can do the pranams, and if anybody has questions they can say. Should we do the pranam then? Maybe you guys can read the purpose, go over the notes, and next class, as we'll have more time, we can take questions. Okay. वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. Okay, Hare Krishna everyone. Thank you for joining. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Niyati. Thank you, Mataji. Hare Krishna. Thank you. So much, Niyati. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you so much, Niyati. Hare Krishna everyone. Hare Krishna. Thank you, Niyati. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Niyati.